Hello dear friends, welcome back to Bodulwar Academy. In the last video of class 10 chapter 2, we have discussed how to find the solution and the roots of the quadratic equation. Okay. अब क्या है? Exercise 4.2 of quadratic equation. Okay. Now see. In the first they have given, I think, how many problems? 5 problems in which they are asking to find the roots of quadratic equation by factorization method. Is it okay? Okay. Now see, in which they have given the first one, x square minus 3x minus 10 equals to 0. Now see, what is our method? फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट और लास्ट इनका मल्टीप्लिकेशन -10, बीच में जो टर्म है उसका क्या चाहिए हमें? एडिशन. नाउ आई हैव टू चूज सच नंबर्स दैट their multiplication should be -10 and addition -3. That's why I am going to choose that number -5 and 2. मल्टीप्लीकेशन -10. ओहो, मल्टीप्लीकेशन तो ओके लेकिन एडिशन भी ओके है, दैट्स वाई तो नंबर भी क्या है? ओके. नाउ एक्स स्क्वायर एज इट इज, इन प्लेस ऑफ -3x आई कैन राइट माइनस ऑफ 5x प्लस 2 ऑफ x -10 इक्वल्स टू 0. हियर x is common, what remains? x minus 5. Here plus 2 is common, what remains? x minus 5 equals to 0. बीच में प्लस, ये दो टर्म, इनमें से x minus 5 is also common, what remains? x plus 2 equals to 0. Now just put this term equals to 0 and this term equals to gray and get your answer. X minus 5 equals to 0 and x plus 2 equals to 0. Therefore, x equals to 5 and x equals to -2. These are the roots or the solutions of a given quadratic equation. Simple method. Factorization, choose a term, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, दो कंडीशन सेटिस्फाई कीजिए, बस उसको फिर यहाँ पे एडजस्ट किया. अब देखिए सेकंड प्रॉब्लम क्या है? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0. नाउ से ओहो, फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या है? 2, इनका मल्टीप्लीकेशन कितना है? -12. ओके, बीच में कौन सी टर्म है? प्लस x, तो कोएफिशिएंट क्या है? +1. Oh, now see, I want numbers whose multiplication should be -12 but addition should be +1. Oh, I am going to choose -4 into 3 -12 addition, and oh no, +4 -3. +4 -3 is also -12. And a problem. +4 -3 addition +1. Oh, means +4 -3. These are the numbers which satisfied the multiplication and addition condition for the factorization formula. Now see what you have to do. 2x square plus, in place of x I can write +4 times x minus 3 times 6 equals to 0. Find out common. What is 2x? What remains? X plus 2. Here -3 is common. What is remains? X plus 2 equals to 0. Oh ho. X plus 2 again common. What remains? 2x minus 3 equals to 0. Now put the x plus 2 equals to 0 and again 2x minus 3 equals to 0. Then x equals to -2. This is the first root for this given quadratic equation. Then what is the second? Second is 2x equals to 3. So then x equals to 3 by t is the solution for this or a root for this quadratic equation. Easy. Dumri questions. Now see the third and the fourth one. Boys, are you sleeping? No, don't you have to sleep. Now see,
the third question. What is the coefficient here? Root of 2. Sorry. How many? Root of 2. What is the coefficient here? 5 root of 2. Okay then. Calculate कीजिए आप. देखिए root 2 root 2. Root 2 root 2. Okay. इसको हम रूट a इंटू रूट बी इक्वल्स टू रूट ऑफ a प्लस बी, ये फार्मूला हमें यूज करना है. क्या हो जाएगा फिर? रूट ऑफ 2 इंटू 2 4, रूट 4 2. ओहो, दैट मीन्स 5 इंटू 2 हाउ मेनी? 10. मल्टीप्लीकेशन कितना आया? 10. और एडिशन कितना है मिडल टर्म का? 7. Now we have to choose a such number that the multiplication should be 10 and the addition should be 7. Oh, I am going to choose 5 into 10. Multiplication 10. 5 plus 2 7. Okay, no problem then. Root of 2x square. Now see, I can write 5 times x plus 2 times x plus 5 root 2 equals to 0. Okay. अब देखिए हम जनरली कैसे करते हैं, पहले और दूसरे टर्म में कॉमन निकालते हैं और तीसरे और चौथे में. अब देखिए यहाँ पे अगर मैं ये टर्म यहाँ पे लाता हूँ, ये टर्म यहाँ पे लाता हूँ, तो इसमें से कॉमन निकलने की ज़्यादा चांसेस है. अब देखिए I am just rearranging nothing. 2x plus 5x plus 5 times root 2 equals to 0. अब देखिए ये क्या है भाई? 2 है. May I write 2 like this? Yes, yes. Why you can't write? Now see why I can write. अब देखिए मैं ऐसा क्यों लिख सकता हूँ? मैं ऐसा क्यों हूँ? मैं ऐसा क्यों हूँ? अब देखिए रूट 2 ये डेफिनेशन अप्लाई कीजिए. 2 इंटू 2 4 रूट 4. दैट्स व्हाई आई कैन राइट लाइक दिस. इन प्लेस ऑफ 2 आई एम गोइंग टू राइट नाउ रूट 2 x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 एज इट इज. नाउ सी कॉमन. व्हाट इज कॉमन? रूट 2 times x is common, then what remains? X plus root 2. Oh, now what is common here? Plus 5. What remains? X plus root 2. Okay, no need to worry. Now see, x plus root 2, x plus root 2 again common. What remains? Root 2 x plus 5. स्क्वायर रूट दिखा तो डरना नहीं. सिंपल, जस्ट फॉलो दिस फॉर्मूलाइज. नाउ अब क्या करना है? अब तो आपको भी पता है x इक्वल्स टू माइनस ऑफ रूट 2. ओके. अरे सर 0 के साथ इक्वेट करना पड़ेगा, नहीं तो बोलेंगे आप सर डायरेक्ट कैसे लिख लिया आपने. x प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0 एंड अगेन रूट ऑफ 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. ओहो, therefore x equals to minus root 2 and root of 2x equals to minus 4. Therefore x equals to minus 5 by root of 2. These are the roots of a given quadratic equation. Any problem? Do you have any problem with this? No, just use this. Don't worry again. अब देखिए फोर्थ वन. डरना मना है, खेलना है. 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0. ओहो, ये तो आड़े टेढ़े फॉर्म में क्वाड्रेटिक है क्या? नहीं है ना, है ना, है ना. इससे क्यों डरना है हमें? 8 से मल्टीप्लाई कीजिए थ्रू आउट इक्वेशन, ऑटोमेटिकली गेट एलिमिनेट. देयरफॉर 8 टाइम्स 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल्स टू 8 इंटू 0. ओके, 8 इंटू 2 16x स्क्वायर माइनस 8x. अगर मैंने 8 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 8 कैंसिल हो जाएगा. क्या बचा? ओनली 1 इक्वल्स टू 8 इंटू 0. कम लेट्स 8 इंटू 0. ओहो, 0 सर. गुड, वेरी गुड. नाउ अब देखिए पहला टर्म लास्ट टर्म यानी कि 16 इंटू 1. मल्टीप्लीकेशन कितना चाहिए? 16. बीच में कितना टर्म है? -8. मल्टीप्लीकेशन चाहिए -16 और एडिशन -8. Then choose the numbers. What are the numbers? -4 plus 16 multiplication, but -4 addition -8. Okay, then -4 are the numbers. 16x square in place of -8x, I can write -4x
minus 4x plus 1 equals to 0. Okay. Now see, 4x get common, what remains? 4x minus 1. Oh, here take it, minus 1 outside, what remains? 4x minus 1. Oh, very good. 4x minus 1 is also common, then what remains? Again 4x minus 1. Okay, no need to worry. अब जो भी दो रूट आएंगे वो क्या आएंगे? इक्वल्स, क्योंकि ये दो जो पार्ट मिले वो कैसे है? इक्वल. देखिए अब 4x minus 1 equals to 0 and 4x minus 1 again equals to 0. Therefore 4x equals to 1. Therefore x equals to 1 by 4. Same here, x equals to 1 by 4. Roots are same. अभी देखिए last from the first equation. Sleeping or struggling. देखिए, जस्ट मोबाइल पर वीडियो देखने से आप घर पे सॉल्व नहीं कर पाओगे. इसको चाहिए प्रैक्टिस, खुद को स्ट्रगल करना पड़ेगा. रूट टू क्यों लिखा, 5 को रूट 5 क्यों लिखते, 6 को रूट 3 रूट 2 क्यों लिखते. ये खुद को सोचना पड़ेगा, तभी जाके आप सॉल्व कर पाओगे. अब देखिए फिफ्थ वन, 100x स्क्वायर minus 20x plus 1 equals to 0. Okay, no need to worry. अब देखिए फर्स्ट लास्ट, what is coefficient only. Okay, 100. Middle term, how much addition you want? minus 20, but multiplication 100, not 10. Now see, I am going to choose minus 10 and minus 10. minus 10 100. ओके, मल्टीप्लिकेशन क्या था 100 आया. अब इनकी एडिशन भी minus 20 आ जाएंगी मेरे ख्याल से. ओके, नो नीड टू वरी. देन यूज minus 10 in place of minus 20x. therefore 100 times x square minus 10x plus 1 equals to 0. ओके, अब देखिए यहाँ पे 10x कॉमन निकाल लीजिए तो 10x minus 1 बच जाएंगे. अब देखिए यहाँ से -1 कॉमन निकाली तो क्या बच जाएगा? 10x minus 1 equals to 0. ओके, 10x minus 1 फिर से कॉमन, therefore 10x minus 1 फिर से कॉमन, तो क्या बच गया? 10x minus 1. ओहो, also these are the roots which are going to same. This equals to 0 and this equals to again 0. therefore 10x minus 1 equals to 0. 10x minus 1 equals to again 0. therefore 10x equals to 1. therefore x equals to 1 by 10. okay, this is the first root and again same here, x equals to 1 by 10. इतने सारे डुमरी क्वेश्चंस थे. पहला और सेकंड तो डुमरी था, थर्ड में रूट था, फोर्थ में ये रीअरेंज करना था, लास्ट में तो ये तो सिंपल ही था. तो देखिए ऐसे सवाल आते. अभी देखिए दूसरा क्वेश्चन. नाउ सी द सेकंड प्रॉब्लम. सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1. तो देखिए ये एग्जाम्पल 1 में जो आपके टेक्स्ट बुक में वो वर्ड प्रॉब्लम थे, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा. इंट्रोडक्शन पार्ट में वो वर्ड प्रॉब्लम से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्मुलेट किया था वहीं पे आप देख लेना. दोबारा फॉर्मुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं. अब देखिए ये था पहले का फॉर्मुलेशन क्वाड्रेटिक और ये था दूसरे का. तो देखिए हम यहाँ इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो देखिए इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे. ओके, नेक्स्ट टू दिस. नाउ कोएफिशिएंट इज 1 हियर इज 324. ओहो, बिग नंबर. मल्टीप्लिकेशन 324, एडिशन -45. multiplication 324, addition -45. now see -9 -36, इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा 324. करके देखना. ओके, करके देखना. -9 -36, ये कोई करने की ज़रूरत नहीं, ये तो आपको भी समझेगा. -9 -36 -45. now x square in place of -45x I can write -9x -36x -9x -36 plus 324 equals to 0. x common, x minus 9 remains. -36 common, x minus 9 remains equals to 0. 324 को
36 से मल्टीप्लाई करना, 9 ही आएगा। अब देखिए x माइनस 9 अगेन कॉमन, x माइनस 36 रिमेन्स इक्वल्स टू 0। सिंपल है, देयरफॉर x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 36 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू 9 इज द फर्स्ट रूट एंड x इक्वल्स टू 36 सेकंड रूट। डुमरी सवाल था भाई, ये तो कोई भी बच्चा सॉल्व कर सकता है। अब देखिए सेकंड, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। कौन सी बड़ी बात है, कोएफिशिएंट उठाओ, उठाया, मल्टीप्लिकेशन कितना है 750, बीच में कोएफिशिएंट कितना है -55। देखिए चूज करो नंबर, तो देखिए -25 एंड -30, इनका एडिशन आएगा 750 और इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा 750 और एडिशन आएगा -55। करके देखना ओके, करके देखना भाई। सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर, आई कैन राइट -55x like -25x -30x plus 750 equals to 0. x common, x minus 25 remains, -30 commons, x minus 25 remains equals to 0। करके देखना, 750 अपन 30 कितना आएगा 25 आएगा, x minus 25 again common, what remains x minus 30 equals to 0, therefore x equals to 25, sorry, x minus 25 equals to 0 or x minus 30 equals to 0. x equals to 25 first root and x equals to third second root for this quadratic equation. ओके, तो सिंपल है। तो आप फर्स्ट वीडियो में जाके देख लेना कि हमने वर्ड प्रॉब्लम से ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्मुलेट किए थे, और इसमें सॉल्व करना था हमें कि उन जो भी हमने फॉर्म किया था उसका हमें क्या निकालने थे, रूट। ओके, पहला क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब नाउ थर्ड वन, तो देखिए थर्ड वन, देखिए थर्ड क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ओके, इंटरेस्टिंग तो है लेकिन सॉल्व कैसे करना है। फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 and product is 182. Very less information they have given, but they have given appropriate correct information. What? Okay, I will choose first number equals to x and second number equals to y. Okay, they have given that the sum of two numbers is 27. Okay, first number is x and second is y. Now see, sum of two numbers, that is x plus y is 27. Now see, y equals to 27 minus x, I can write, therefore okay, क्या दिया था, पहला नंबर मैंने x चूज कर लिया, दूसरा y, तो उन्होंने क्या कह दिया, क्या कि sum of two numbers is how many, 27, therefore x plus y equals to 20, therefore y equals to 27 minus x. Now in place of y here you can write y equals to 27 minus x. अब देखिए फिर और क्या दिया है, and the product is 182. अब देखिए नए नंबर्स कौन से हो गए, अब x and 27 minus x, इनका प्रोडक्ट कितना है 182, therefore x 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 182 हो गया। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, x इंटू 27 टाइम्स x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 182 ऑन द राइट हैंड साइड, इफ आई शिफ्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड प्लस बिकम्स माइनस इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसको आगे लाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म के जरिए इसको रीअरेंज करेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x
प्लस 182 इक्वल्स टू 0। ओहो, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड, जहाँ पर कोएफिशिएंट 1 विच इज द नॉन जीरो। नाउ मेथड, फर्स्ट का कोएफिशिएंट लास्ट, इनका मल्टीप्लिकेशन 182 है और बीच में जो टर्म है उसका एडिशन -27। अब देखिए मैंने चूज कर लिया -13 एंड -14। इनका अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 182 आपको मिल जाएगा। घर पे भाई करके देखना। और इनका अगर एडिशन करेंगे -13 -14 -27। ओके देन एक्स स्क्वायर इन प्लेस ऑफ -27x you have to write, you can write -13 times x -14 times x plus 182 equals to 0. कॉमन x -13 रिमेन्स, यहाँ पे -14 कॉमन्स, x -13 रिमेन। देखना करके देखना, 182 को 14 से डिवाइड करके देखना आएगा। x -13 अगेन कॉमन, what remains? x -14 equals to 0. Therefore x -13 equals to 0 and x -14 equals to 0. Therefore x equals to 13 and x equals to 14. Okay, which are the roots of given quadratic equation? और क्वेश्चन क्या था हमारा कि फाइंड द 2 नंबर्स। तो हमने 2 नंबर फाइंड किए कि जिनका सम कितना आएगा 27। 13 + 14 27। अगर इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे 13 × 14, उनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 182। यानी कि जो भी हमने नंबर फाइंड आउट्स किए वो कैसा है, करेक्ट। तो ओके, तो देखिए इस पार्ट में यही तक हमने पहला, दूसरा और तीसरा सवाल पूरा सॉल्व कर लिया। तो अगले पार्ट में 4th, 5th एंड 6th हम पूरा सॉल्व करेंगे। तो देखिए घर पे प्रैक्टिस कीजिए आप, ये जस्ट वीडियो देखने से काम नहीं होने वाला है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।